afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ये बिल्कुल अब क्लियरली ये बता दिया गया है कि किस तरह से शाम 5 बजे इस पर सहमति बन गई और इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, हिदायत दे दिए गए कि अब किसी भी तरह का कोई एक्शन दोनों मुल्कों की तरफ से। एक बार फिर सुनते हैं क्या कहा गया। It was agreed between them. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th. तो ये अभी आप सुन रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों तरफ के डीजीएमओ की आपस में बात हुई है, दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर राजी हैं, दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर राजी। यानी कि ये अब एमईए ने एक बार फिर से बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आ गई कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर राजी हैं और जैसा उन्होंने बताया कि 3:35 पर ही ये बातचीत हो गई थी। Between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect
from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this. तो आप सुन रहे थे विक्रम मिस्री को, फॉरेन सेक्रेटरी। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि आज दिन में या ये कह लें कि दोपहर के बाद 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री एक्शंस है वो उन्होंने फोन किया और भारत के डीजीएमओ से बातचीत हुई और ये तय हुआ कि 5 बजे से इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा कि दोनों साइड्स जो है वो फायरिंग रोकेंगे, मिलिट्री एक्शन रोकेंगे, चाहे वो थल पे हो या जल पे हो या हवा में हो। इस पर जो है ये इसी को कहा जा रहा है सीज फायर। इस पर सहमति बन गई है और कहा यह गया कि दोनों देशों के डीजीएमओ से बात हुई है 3:35 पर और ये 5 बजे से लागू हो गया। डॉक्टर अनिल गौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो हम लोग इंतजार कर रहे थे वो अभी आपने सुन लिया, अब आपका रिएक्शन। बिल्कुल, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है कि ये हो गया, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कह रहा था आपको कि भारत कभी भी लड़ाई नहीं चाहता। कभी भी अपने जो हमारा जो एफर्ट है, हमने देखिए 2014 से लेकर अभी तक इतना एफर्ट किया है कि हम अभी चौथे पायदान पे पहुंच गए इकोनॉमिक उसमें। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी जो है लड़ाई की वजह से ये नीचे आ जाए, एक। और दूसरा जो देखे जो ज्यादा बड़ा इफेक्ट है जो लड़ाई का, वो ये है, ये जितनी जो हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो कंपनियां चीन से वहां से बाहर निकल रही हैं, वो हिंदुस्तान में आके रुक रही हैं और हिंदुस्तान में आके अपना निवेश करना चाहती है और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। तो अगर लड़ाई हो जाएगी, हम लड़ाई में होंगे, तो ये जो कंपनीज हैं ये बंद हो जाएंगी आने। ये कहेंगे यार ये तो स्टेबल नहीं है कंट्री, यहाँ तो मुश्किल है, हम वियतनाम चले जाते हैं, हम थाईलैंड चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए हमारा जो मेजर्ड रिस्पॉन्स था। देखिए मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी और हमारी कैबिनेट और बाकी हमारा जो सारा दायरा है उसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी सूझबूझ के साथ काम किया है कि उनको पता है कि देखिए अगर हम फुल स्केल वॉर करते तो उसमें नुकसान हमारा था। पाकिस्तान तो चाहता था कि हम फुल स्केल वॉर करें, चीन भी चाहता था हम फुल स्केल वॉर करें, क्योंकि अगर हम फुल स्केल वॉर करते हैं वो चीन को फायदा है, क्योंकि वो जो कंपनी वहां से जो भाग रही थी वो नहीं जाती, वो रुक जाती। हो सकता है चीन फिर उनके साथ कुछ और नेगोशिएशन करता। पाकिस्तान को फायदा ये था अगर फुल स्केल वॉर करते, फिर वो कहता देखिए जी हिंदुस्तान ने लड़ाई कर ली मेरे पे, अब तो मैं न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता हूं, अब तो मैं गरीब पार्टी हूं। तो इसीलिए हमने बड़ा मेजर्ड रिस्पांस किया और जिस तरीके से हमने उसको कैलिब्रेटेड रिस्पांस हमने बढ़ाते गए, तो वो पाकिस्तान की पूरी जो उनका इरादा था और उनके जो मंसूबे थे वो सारे के सारे तोड़ दिए। सबसे बड़ा मंसूबा उनका यह था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच में जो है एक दंगे कराएं और जो शांति कराएं हमारे, क्योंकि देखिए हमारे देश में मुसलमान जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, हमारी आबादी जो है मुसलमानों की, और वो हमारा भाईचारा जो है वो सबसे बड़ा वो एक एसेट है और उस एसेट को ये तोड़ना चाहते थे। जिस तरीके से काम किया पहलगाम के अंदर, पहली बार देखिए मैं कहता हूं कि चलो जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया उन्होंने वो अलग था, ये जो एक शनाख्त करके उन्होंने जो किया है कि भाई आप कौन है, कलमा पढ़े नहीं है तो उसको गोली मार दी वहां पे, ये जो चीज थी ये डायरेक्ट जो है इफेक्ट करनी थी हमारे आपस के भाईचारे के ऊपर। पर हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहता हूँ हमारे जो ये प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो ये है कैबिनेट वगैरह ने सबने बड़ा अच्छा लिया और कैलिब्रेटेड रिस्पांस करके पाकिस्तान की जो है एकड़ी तोड़ दी। अब पाकिस्तान को पता लग गया कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब मैं जैसे वो मैं बोलता हूँ ना, वो एक हम स्कूल में पढ़ते थे द किंग हैज नो क्लोथ्स, आपने भी शायद वो कहानी पढ़ी होगी, अंग्रेजी में होती थी। तो वो हाल हो गया पाकिस्तान का, उसको सडनली पता लगा कि यार मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया, मेरे पास तो है कुछ नहीं। मैं जिस चीजों से कहता था मैंने जी इतने ड्रोन मंगाए हैं, चीन से मंगाए हैं, उधर से तुर्की से मंगाए हैं, हमारे पास मिसाइल है, फतेह मिसाइल है, पता नहीं क्या क्या नाम लेते थे, ये इतने मिसाइल है। और अभी हाल ही में जब ये हुआ तो उसके टेस्टिंग भी कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा था जी हम दिल्ली करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। कैप्टन अनिल गौर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर